ये सुहाग को तो तन काई कोर जिन्ना नाउ सुहागनी तिना झाक न होर। आसा महला पंजवा। हर रस छोड़ होछे रस माता, घर मह वस्त बाहर उठ जाता। हर रस छोड़ होछे रस माता, घर मह वस्त बाहर उठ जाता। दीन दयाल सच्चे पातशाह हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्ना दे मुबारक चरण परसरे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, आप जी सरबत संगत गुरु बाबा जी दी मेहरामत बख्शिश सदका रात्रि दे इन्ना विशेष दीवाना दियां हाजरियां भरदे हुए मेरे तो पहला गुरु सवारियां दे पासों रब्बी बाणी अकाली बाणी दा कीर्तन शरवण कर रहे सी। सो आओ समय दी घाट होण करके शब्द दा पहला बंद केवल आप जी दे नाल साझा कीता है। विचारां प्रारंभ करन तो पहला पातशाह जी दी असीस बख्शिश प्राप्त करिए। महाराज जी ने आसा राग दे सरलेख हेठ इस शब्द दे विच रहाओ दियां तुकां अंदर बख्शिश कीती। रार करत झूठी लग गाथा, सुनी ना जाए सच अमृत काथा। विचारां दी प्रारंभता तो पहला आओ एक बार फिर गुरु चरनां दे विच सीस झुका के फतेह दे नाल सांझ पाइए। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द दियां रहाओ दियां तुकां हन। सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा। रार करना हुंदा है झगड़ा करना, वाद विवाद, टीका टिप्पणी। हुण महाराज जी ने जिस विशेष नुक्ते वाल साडा ध्यान दवाया है, महाराज जी कहन लगे मनुख दा सुभाव की बनिया होया है। सुनी ना जाई सच अमृत काथा। अमृतमयी कथा सुनी नहीं जा रही, बंदे दा सुभाव बन चुका है। ते अमृत कथा जिस कथा दे विचों इस नूं आत्मक जीवन मिलना सी, जिस कथा दे राहीं इन्हें गुरु दी असीस नूं गुरु दी बख्शिश नूं प्राप्त करना सी, उस विचार दे नाल इहदी सांझ नहीं बन रही। रार करत झूठी लग गाथा। अगला जिहड़ा वचन आख्या वो कहन लगे झूठी गाथा दा करके, झूठियां कहानियां दा करके
ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏ ਸ਼ਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਤ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3-4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪੱਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੌਣਾ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਂਡ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ? ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਨੈਣ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਰਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਾਸ ਗਰਭਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपने कन्ना दे नाल सुन लिया। सो संगत की ओर से मैसेज पहुंचा है कि आप हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए। मैं यत्न करता हूं, वैसे तो मेरी मातृभाषा पंजाबी है, अगर थोड़ा इधर उधर हो तो आप एडजस्ट कर लेना। संगत जी, जैसे हम विचार कर रहे थे कि गुरु जी बोल रहे हैं कि अगर आप गुरु चिंतन में नहीं जुड़ते तो भाई अपनी स्वय पड़चोल कीजिए, कमी किधर है। महाराज जी ने, गुरु बाबा जी ने दो पक्ष हमारे सामने रखे। पहला पक्ष वो कहते जिन्होंने गुरु जी की विचार, गुरु उपदेश को अपने कानों से सुन लिया, उनका जीवन कैसा हो गया। और जो गुरु जी की विचार को नहीं सुनते, उनके प्रथाए बाबा जी क्या बोलते हैं, कहने लगे इसको अमृत अच्छा नहीं लगता। महाराज जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो गुरु बाबा जी उपदेश करते हैं, अमृत कौड़ा बिखया मीठी। बिख कहते हैं जहर को, कहने लगे इस इंसान को अमृत कड़वा लग रहा है, कौड़ा लग रहा है। अमृत कौड़ा, बिखया मीठी, बिख जहर अच्छा लग रहा है। साकत की बिद नैनो डीठी, कहने लगे ये गुरमुख इंसान की निशानी नहीं है जिसको अमृत कौड़ा लगता है, ये साकत इंसान की, साकत पुरुष की निशानी है, उसको जहर मीठा लगता है। जहर जिससे हमारे जीवन का भला नहीं हो सकता, वो चुगली हो सकती है, निंदा हो सकती है, फजूल की बातें हो सकती हैं। महाराज जी कहते हैं अमृत कौड़ा बिखया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। ये विधि साकत की हमने नैनो से डीठी है, उसे नैनो से अपनी आंखों से निहारा है, साकत की जीवन शैली कैसे होती है। पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कूड़ कपट अहंकार रिजाना, नाम सुनत जन बिशु डिसाना। जो साकत मनुख होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, जब उसके कान में गुरु शब्द की बात पड़ती है, जैसे उसे बिशुए ने डस लिया हो। नाम सुनत जन बिशु डिसाना। मैं बात कर रहा था, बेनती कर रहा था कि एक वो पुरुष हैं
जिन्होंने गुरु जी की विचार को, अमृतमयी कथा को अपने कानों से सुना और गुरु जी की कही हुई बात को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर दिया। उन्होंने ऐसे जीवन वाले जो अनेक पुरुष थे, उनको महाराज जी की वाणी ने सत्संगी जन, गुरमुख जन, संत जन बोला है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी साखियां हमें मिल जाती हैं। जदों आपां गुरु इतिहास नूं पढ़दे हां संगत जी, इतिहास दे विचों जिक्र मिलदा है भाई फग्गो जी दा। महाराज जी ने सुनन दी गल कीती ना, जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज कर वास, गुरमति साला सच हर पाया गुणतास। पातशाह जी कृपा करते हैं, जो मनुख गुरु जी की इबादत को अपने कानों से सुनते हैं। चाचा फग्गो जी, इतिहास दे विच एक सिख दा जिक्र मिलता है, भाई फग्गो जी। तुसीं अज भी बिहार प्रांत दे विच जाओ, उधर एक शहर पड़ता है ससाराम, ससराम भी बोलते हैं, ससराम भी बोलते हैं। उधर के एक सिख हुए हैं भाई फग्गो जी। संगत जी, आज भी जब हम अपना घर बनाते हैं ना, तो हरेक सिख की यही कोशिश रहती है कि अपने घर में निवास करने से पहले उधर गुरु जी का प्रकाश हो, वाणी, भजन, कीर्तन, कथा जैसे भी हो, हमारे गुरु जी की आमद हमारे घर पहुंचने से पहले होनी चाहिए। ऐसे ही भाई फग्गो जी गुरु घर के अनेक सेवक सिख श्रद्धालु थे। उन्होंने अपना घर बनाया और उनकी कोशिश ये थी कि जब मेरे सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी, 9वें सतगुरु जदों मेरे घर दे विच आउण ते ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, एक बेनती करा, ये भाई फग्गो जी मसंद सन। मसंद किसे कहते थे? जो सिख गुरु जी के द्वारा तैयार किया, स्थापित किया, एक प्राइम अथॉरिटी होता था, वो दूर दूर इलाकों में जाकर सिख संगत की दान बेटा गुरु जी तक पहुंचाता था, उसे मसंद बोलते थे। भाई फग्गो जी गुरु घर दे मसंद हन। ते एक दफा की होया, गुरु तेग बहादुर साहब जदों उन्हां दे घर दे विच आए, उन्हां ने घर विच पहुंचण तो पहलां अपने घर दा दरवाजा बड़ा उच्चा रखाया, ताकि जदों मेरे सतगुरु जी मेरे घर दे विच शामिल होण, उन्हां नूं घोड़े तो थल्ले उतरना ना पवे। सो सतगुरु महाराज जब इधर आते हैं इनके घर में, तो वो गुरु चरणों पर ठह के नमस्कार करता है। गुरु साहब जी आशीष देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। कुछ समा बातचीत होती है, थोड़ा समा, तो गुरु जी जब जाने लगते हैं, विदा होने लगते हैं, तो उससे पूछते हैं, भाई साहब हमारी बेटा? तो चाचा फग्गो जी बोलते हैं, सतगुरु महाराज, जो सिख संगत की बेटा थी वो तो मैंने गुरु दरबार तक पहले ही पुजदी कर दी थी। गुरु साहब जी कहते, अच्छे से याद करो, कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। तो भाई फग्गो जी थोड़ा दुचिती में थे। जो भी सिख संगत की द्वारा मुझे बेटा दी गई थी वो तो मैंने पहुंचा दी, लेकिन यदि गुरु जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा। याद किया और गुरु साहब जी को बोले, सतगुरु महाराज, हाँ आपकी एक बेटा अभी भी मेरे पास है। तो सतगुरु महाराज जी कहने लगे, वो क्या है बेटा? कहते, सतगुरु, जब आपके द्वारा जिम्मेवारी सौंपने के बाद मैं सिख संगत के घरों में उगराही करने के लिए गया, तो एक घर में गया, तो उधर क्या हुआ, उस घर में, उस घर का जो शिक्षा वो तो नहीं था, और उसकी पत्नी थी उधर, घर बहुत गरीब था। ते उस
ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਾचा फग्गो जी गुरु साहब जी के वो सिख बोलने लगे आपके पास जो भी कुछ है वो भी आप दे सकते हो। तो कहने लगे उस सिख की बीवी ने क्या किया कि उधर थोड़ी राख पड़ी हुई है, यही आप ले जाओ। चाचा फग्गो जी कहते उन्हें स्वाद ही बुक भर के ते मैनू दे दी कि आ ले यही है साडे कोल, तुसीं यही लै जाओ, इनू ही साडी भेटा समझ लेना। ते भाई फग्गो ने अपने नाल ले कपड़े दे विच उस स्वाह नूं उस मिट्टी नूं पाया, पल्ले बद्धा ते घरे आके जदों उस मिट्टी नूं खिलारिया ना संगत जी, उहदे विच एक बेरी दी गिटक सी। ਉਹ बेरी दी गिटक जदों उन्हां ने मिट्टी उत्थे स्वाह खिलार दित्ती ते समा पा के वो एक फलदार बूटा बन गया, वृक्ष बन गई। हुण जदों सतगुरु महाराज जी ने भाई जी नूं पुछया कि साडी कोई भेटा तुहाडे कोल बाकी बची है, ते कहण लगे महाराज ये बेरी तुहाडी अमानत है ते ये किसी सिख ने जिवें मेरे तक पुजदी कीती सी उवें मैं अगां अगे तुहाडे तक पहुंचा दित्ती। हुण देखो जेड़ा एक बोल असीं अरदास दे विचों पढ़दे हैं ना संगत जी, जो बोल हम अरदास में पढ़ते हैं हर रोज दोहराते हैं, देख के अनडिठ करना। यदि चाचा फग्गो की जगह कोई मेरे जैसा सिख होता, थोड़ा होशापन दिखाता, तो हो सकता है उधर वाद विवाद होता, लेकिन नहीं, देख के अनडिठ करना। किसी दी गलती नूं किसी दे औगन नूं ढकना, पर्दा पाउणा एक बड़ी वड्डी नियामत है। एक गुरु की बख्शिश तो बिना होर नहीं हो सकता। ते ਉਹੀ सिख कर सकते हैं जिन्हां दे जीवन दे विच गुरु की विचार आई होवे, जिन्हां ने सचमुच अपने कन्नां दे नाल गुरु की सिक्ख्या नूं अपने जीवन दे विच सुन के लागू कीता होवे। संगत जी भाई फग्गो जी ने अपने घर का दरवाजा उच्चा बनाया कि गुरु जी नूं घोड़े तो थले उतर के मेरे घर दे विच किधरे आना ना पवे। ते बाद विच अज भी तुसी जाओ उनकी याद में आज भी उधर गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बाद में उस दरवाजे का जो साइज वो छोटा कर दिया गया कि यदि कोई भी सिख इधर शमूलियत करे, इधर इंटर हो, तो उसे ये रियलाइज हो कि मेरा गुरु इस दरवाजे के बीच निकल के आगे, वो प्राइम अथॉरिटी है ना गुरु जी, तो वो उनका एक विशेष दर्जा है। अब जो भी सिख उस दरवाजे से निकलता है उसको झुक के निकलना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी उधर गए झुक के नहीं गए, घोड़े पे सवार होके गए। चाचा फग्गो जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक। हम उनके जीवन से सेध ले सकते हैं कि उन्होंने गुरु जी की वाणी को सुना अपने कानों से और गुरु जी की शिक्षा अपने जीवन में लागू की। साध संगत महाराज जी ने आख्या सुनी ना जाए सच अमृत गाथा, रार करत झूठी लग गाथा, हर रस छोड़ होशे रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता। महाराज जी कहने लगे इसके घर में, घर कौन है? एक घर जिसमें हम हर रोज रहते हैं, जो हमारा जद्दी पुरुषी घर होता है, जिधर हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। एक हमारे हृदय घर को भी महाराज जी ने घर से तस्लीम किया है। ये हमारे मन को, हमारे हृदय को भी घर बोला है। तो पातशाह जी कहते हर रस छोड़ होशे रस माता, हरी रस को छोड़कर ये जो समाज के दुनिया के झूठे रस हैं, दुनियावी बातें, इनों में इन सब रसों में मस्त हुआ है। हर रस छोड़ होशे रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता। हिरदे घर दे विच नाम रूपी अमृत पिया होया है, पर कहन लगे एदी उन्होंने समझ नहीं है। जैसे हम बाणी में पढ़ते हैं घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया।
महाराज जी कृपा करते हैं, जैसे मिर्ग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी पड़ी होती है और उसको सुगंधी आती है, लेकिन वो कस्तूरी को इधर उधर ढूंढता अपनी सारी जिंदगी व्यर्थ गवा देता है। कहने लगे हृदय में रब जी का नाम पड़ा हुआ है, घर में वस्त बाहर उठ जाता, लेकिन इसको उस नाम स्वरूपी अमृत की समझ नहीं है, इसलिए इधर उधर दौड़ रहा है। सो इसलिए पातशाह जी फरमाते हैं, कहते हैं कि ए इंसान, अपने मूल से जुड़ने के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि तुम अपनी स्वयं पड़चोल करो। इसीलिए पातशाह जी ने बाणी में कहा, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। ऐ मेरे मन, तू रब जी दी जोत है, रब जी की अंश, रब जी दी जोत, रब जी दा स्वरूप है। पर जेकर तू अपने मूल नू पहचान लवे, फिर तेरा जीवन गुरु नजर दे विच प्रवान हो जाएगा। महाराज जी ने शब्द दियां अगलेरियां पंक्तियां दे अंदर बख्शिश की, वजह साहिब का सेव बरानी, ऐसे गुणा शाद्यो प्रानी। कहन लगे मालक अपने गुरु नू छड्ड के, अपने मालक नू छड्ड के, वजह साहिब का सेव बिरानी। कहने लगे कोई नौकर अपने मालिक की नौकरी करता हो, उसको तनख्वाह, उसकी पगार उसका मालिक दे, लेकिन वो अपने मालिक के कहने अनुसार ना चले, तो उसकी नौकरी, उसकी ड्यूटी बहुत लंबा समय नहीं चल सकती। ऐसे ही वजह साहिब का सेव बिरानी, ऐसे गुना असाध्य प्राणी। उस मालिक ने ए इंसान तेरे को अच्छा जीवन दिया, घर परिवार दिया। जैसे हम सुखमनी साहब की वाणी में पढ़ते हैं, जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहें, तिस ठाकुर को रख मन माहें। जे प्रसाद सुगंध तन लावें, तिसको सिमरत परमगत पावें। महाराज जी बोलते हैं, जिस गुरु की कृपा से आप 36 प्रकार के भोजन छकते हो, तरह तरह के पकवान, भोजन, प्रसादा पानी। देखो कितने लोग हैं इस संसार में जिनको 2 समय की रोटी नसीब नहीं होती। तो महाराज जी बोलते हैं, जो अपने परिवार में बैठ के आप खाना खाते हो, प्रसादा छकते हो, ये भी उसकी दया से है, उसकी कृपा की वजह से है। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहें, उस मालिक की कृपा से आप तरह तरह के पकवान छकते हो, तो आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? तिस ठाकुर को रख मन माहे। उस ठाकुर को, उस मालिक को अपने मन में संभाल के रखना है। मन में संभाल के रखने का मतलब है अपने मन चित्त करके उसको सदा ही अपने जहन में बिठाकर रखना। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ गुरु के मुताबिक जीने बिताने का यत्न करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि हमने अपने मालिक को अपने मन में याद रखा हुआ है। तिस ठाकुर को रख मन माहे। तो आगे बोलते हैं, जे प्रसाद सुगंध तन लावें, तिसको सिमरत परमगत पावें। ऐसे बोलते हैं कि उस मालिक को सिमरते हुए जब आप अपना लाइफ स्पेंड व्यतीत करोगे, तो आप परम गति को पा जाओगे, आप गुरु की नजर में प्रवान हो जाओगे। सो ऐसे आज के शब्द में जो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यों भावे त्यों कर कृपाला। कहने लगे, ए दीनों के ऊपर दया करने वाले वाहिगुरु, ज्यों भावे, जैसे आपको भाता है, त्यों कर प्रतिपाला, तैसे हम जीवों की प्रतिपालना कीजिए। सो ये जो शब्द हमारे 5वें गुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की मुबारक रचना से उच्चारण किया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 376 पर यदि आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। गुरु साहब जी की वाणी हम हर रोज पढ़ते हैं, यत्न कीजिए थोड़ा थोड़ा अर्थों समेत हम पढ़ सकें। आजकल सुविधाएं बहुत हैं, आप चाहो तो गुरु ग्रंथ साहब जी की पोथियां घर ले आ सकते हो, चाहे तो
मोबाइल फ़ोन से भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के अर्थ पढ़ सकते हो। वाणी पढ़ने का, सुनने का हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम अपने गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। यदि हम जैसे रोज़मर्रा के जीवन में गुरबाणी सुनते हैं, गुरबाणी को जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमें गुरु जी बताते हैं। गुरु साहब जी कृपा करन। अज दी इन्नी क हाज़री आप जी ने प्रवान करनी। सो इत्थे ही समाप्ति है। कल दे दीवाना दे विच आप जी सरबत संगत वध चढ़ के हाज़रियां भरन दा यतन करियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन। साडा सारियां दा गुरु घर दे लई कढ़िया होया समा लेखे लग जावे। भुल्लां चुकां दी खिमा। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।